Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Azhar's Virtual Academy. Today we will discuss some important points from chapter 1 of class 9 in textbook board. The first chapter is Introduction to Biology. So let's start. Biology comes from a Greek word यूनानी बोली जो लफ्ज़ है ये एक यूनानी लफ्ज़ है. Bio means life and logos means study. means study of life. नाउ बायोलॉजी की तीन मेजर डिविजन्स हैं ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी. ज़ूलॉजी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ज़ोयन मींस एनिमल्स, सो इट इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स. बॉटनी कम्स फ्रॉम द वर्ड बोटेन व्हिच मींस study of plants, and microbiology is about small particles, small living organisms. Microbiology is about small living organisms like virus, bacteria, etc. Now we will discuss some main branches of biology. So what is morphology? Morphology comes from the word morph which means external. In this branch we will study about external structure of a living organism. Anatomy में हम पढ़ते हैं internal structure of a living organism. Cell biology, it is the study of cell. Histology, it is the study of tissues. ये बहुत बार MCQs आ चुका है previous tests में. Histology, it is the study of tissues. Physiology, it is the study of organs plus their structure and how they work. organs का structure और वो कैसे काम करते हैं हम पढ़ते हैं physiology में. Taxonomy है वर्ड टेक्सॉन में से लिया गया है. इसका मतलब है साइंटिफिक नेम्स देना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को और उनकी क्लासिफिकेशन करना ग्रुप्स में. नाउ 7 इज जेनेटिक्स. जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, हाउ हेरिडिटी कैरेक्टर्स ट्रांसफर फ्रॉम वन पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग. एम्ब्रियोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो प्लस स्टेजेस. एम्ब्रियो कैसे बनता है और उसके फॉर्मेशन से लेके जो भी स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं वो हम पढ़ते हैं एम्ब्रियोलॉजी में. एनवायरमेंटल, इट इज अबाउट द एनवायरमेंट. एंड पैलियोंटोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ fossils. Paleontology is the study of fossils. It is also important for MCQs. And the 11th point is biotechnology. It is the study of changing genes plus chromosomes. जीन्स और क्रोमोसोम्स को चेंज करके हम किस तरह से एक जानदार की क्वालिटीज दूसरे जानदार में प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये बायोटेक्नोलॉजी में स्टडी करते हैं. पैरासाइटोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स. फार्माकोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ फार्मेसी और मेडिसिन्स. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, it is about the organic molecules in cells plus organelles. And the biotechnology, it is the chemistry plus biochemistry, it is the chemistry plus biology. And biogeography, geography plus biology. Bioeconomics, economy, products from living things. हमें जो products मिलते हैं living things में से, जैसे कि हमें जानदारों में से चमड़ा लेदर मिलता है, उसको सेल करके हम इकोनॉमी को कैसे स्ट्रेंथ करते हैं, ये हम पढ़ते हैं बायो इकोनॉमिक्स में. Now we will see the contribution of Muslim scientists in the field of biology. Muslim scientist Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan has written two important books: Al-Nibatat about plants, Al-Hayawanat about animals. Abdul Malik Asma'i has written 5 books: Al-Khair about horses, Al-Ibl about camels, Al-Shad about sheep, Al-Wahush about wild animals, and Khalaq al-Insan about humans. Abu Ali Sina has written one book, that is Kanun fi Tibb Shifa. Also some other contributions he has given in the field of biology. But from the MCQ's point of view, this question is mostly asked, that who has written Kanun fi Tibb Shifa? So it is written by Abu Ali Sina. Now we will see some other important points of this chapter. We know that more than 100 elements exist in nature. नेचर में 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, बट 16 एलिमेंट्स ऑफ दीज 100 एलिमेंट्स और मोर देन 100 एलिमेंट्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल एलिमेंट्स. उन एलिमेंट्स में 16 एलिमेंट्स को बायोलॉजिकल एलिमेंट्स कहा जाता है और उन 16 एलिमेंट्स में से 6 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ कहा जाता है. वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस. इनको कहा जाता है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ. अब बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जब बायोलॉजिकल एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो बायोमॉलिक्यूल्स
फॉर्म करते हैं उनके दो टाइप्स होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स तीन टाइप्स के होते हैं, लिपिड्स मतलब चर्बी, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन। और माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लूकोज। नाउ सम अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर आर करेक्ट सीक्वेंस। कोई एक एमसीक्यूज मिला हुआ होगा, उसमें से हमें करेक्ट सीक्वेंस फाइंड करनी होगी। सो करेक्ट सीक्वेंस इज दैट एटम मिलकर क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाएंगे, एक सेल भी मॉलिक्यूल्स का बना हुआ होता है, बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, उसके पार्ट्स होते हैं, उसमें बायोमॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। सेल मिलकर क्या बनाएंगे, टिश्यूज मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन्स। और जब ऑर्गन्स मिलेंगे तो वो एक सिस्टम बनाएंगे, और एक सिस्टम, जब सिस्टम आपस में मिलेंगे तो बनेगा एक लिविंग बीइंग। सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस व्हिच वी मस्ट रिमेंबर। अगर एक स्पीशी एक जगह पे रह रही है, मतलब हैबिटेट है, वहां पे परमानेंट रह रही है, तो उसको हम कहेंगे पॉपुलेशन। यूनिसेल्युलर मतलब वो लिविंग बीइंग्स जो एक सेल के बने हुए होते हैं। उनमें एग्जांपल है बैक्टीरिया, एमोबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एटसेट्रा। एंड मल्टीसेल्युलर मतलब ज्यादा सेल्स का बना हुआ, एक से ज्यादा। वॉलवॉक्स जो है इस चैप्टर में इसका जिक्र है, ये ग्रीन अल्चाई है। ठीक है, और उसके अलावा मल्टीसेल्युलर में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जानवर हो गए, इंसान हो गए, सारे मल्टीसेल्युलर है। सो स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं। मस्टर्ड का जो प्लांट होता है उसका साइंटिफिक नेम होता है ब्रासिका कैंपस्ट्रस। क्या नेम होता है, ब्रासिका कैंपस्ट्रस। इसके दो पार्ट्स होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट और फ्लोरल पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट में तीन चीजें होती हैं, स्टेम, रूट और लीव्स, और इसके लीव्स का कलर जो है वो येलो होता है। फ्लोरल पार्ट में फ्लावर, सीड और फ्रूट होता है। नंबर 2 इज फ्रॉग। फ्रॉग का साइंटिफिक नेम होता है राना टिग्रीना। राना टिग्रीना इसका साइंटिफिक नेम है। ये एक एम्फीबियन है। एम्फीबियन का मतलब है कि ये दो जगहों पर रह सकता है, एक खुश्की पे जमीन पर और दूसरा पानी में। अब ये है एक इंसेक्टिवोर, मतलब ये इंसेक्ट्स खाता है, इंसेक्ट्स इसकी खुराक है, और ये इंसेक्टिवोर है। सो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 पे है एमोबा। एमोबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। इसकी एवरेज साइज 0.25 मिलीमीटर होती है, और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर एक लिक्विड होता है जिसको बोलते हैं एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म के अंदर भी एक लिक्विड होता है जिसको हम एंडोप्लाज्म बोलते हैं। मूव्स बाय, अब मूव कैसे करता है एमोबा, फॉल्स फीट होते हैं जिनको सूडोपोडिया बोलते हैं, और ये एमसीक्यूज में प्रीवियस टेस्ट में आ चुका है। ठीक है, अब इस चैप्टर में दूसरा जिक्र है वॉलवॉक्स के बारे में। वॉलवॉक्स क्या है, ये पॉलीफाइलेटिक नेचर में है, और ये एक ग्रीन अल्चाई है, ग्रीन कलर की ये अल्चाई है। इसकी फैमिली क्लोरोफाइलस है। 50,000 सेल्स अप्रोक्सीमेटली इसमें होते हैं। ये 50,000 सेल्स की बनी हुई होती है। ये फ्रेश वाटर में मिलती है। 1700 में लिवान हुक ने इसको डिस्कवर किया। और अब ये मूव कैसे करती है, ये 2 फ्लैजिला से मूव करती है। कितने फ्लैजिला होते हैं इसमें, 2 फ्लैजिला होते हैं, उनकी मदद से ये मूव करती है। ये फ्लैजिला हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इसके बारे में ज्यादा मालूमात ये है कि ये नॉट डेंजरस फॉर ह्यूमंस, इंसानों के लिए ये खतरनाक नहीं है, प्लस नॉन टॉक्सिक, और ये जहरीली भी नहीं होती।